नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप देख रहे हैं डिमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल एनडीएच। चलिए नजर रखते हैं आज के खबर पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के एक्स सीईएम सोमरजीत हाफलोंगबार ने गुवाहाटी हाई कोर्ट पे एक पीआईएल फाइल किया था अभी के नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के सीईएम देवोलाल गलोसा जी के ऊपर। हालांकि सोमरजीत हाफलोंगबार जी ने उस पीआईएल पे यह मांग किया था कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे चार्जशीट लगे हुए हैं उस तरीके का व्यक्ति कैसे नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के सीईएम पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फरवरी के 1 तारीख को जो है इस पीआईएल को डिस्पोज कर दिया है। तो चलिए सुनते हैं इस विषय में बीजेपी के लीडर्स ने क्या कहा। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सबका स्वागत है। बहुत कम समय में आपका सूचित किया गया, फिर भी आप लोग इतने बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, इसलिए हम आपको हार्दिक आभारी हैं। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रकार बंधुगण, आप सबको ज्ञात है कि हमारे जो ऑटोनोमस काउंसिल के माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवोलाल गलोसा जी, उनके खिलाफ समय समय पर बहुत ही आरोप लगाया गया है। लेकिन हम सब देख रहे हैं और आप सब भी देख रहे हैं कि ये सब आरोप बिल्कुल झूठे हैं और कहीं ना कहीं ये सब आरोप लगा रहे हैं ये सब विफल होते जा रहे हैं। तो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबको ज्ञात है कि माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कुछ यहाँ के अतीत के पॉलिटिशियंस ऐसा आरोप लगाया कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कोर्ट पर कार्रवाई चल रहा है, इसलिए जो उनका जो पद है वहाँ पर वो नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने एक हाई कोर्ट पर पीआईएल दायर किया था और हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके विचार दिया है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी मैं हमारे साथ मौजूद हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और हमारे इस भाजपा डिमा हसाओ जिला के लीगल एडवाइज़र और हमारे यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी डिमा हसाओ जिला के मीडिया पर्सन आप सबके सम्मुख इसके बारे में विस्तार से विषय रखेंगे। Filed by Somerjit Haflongbar and 3 others before the Honorable Guwahati High Court in PIL case number 51/2020, which was filed on 26/8/2020 by the petitioner Somerjit Haflongbar and 3 others against the State of Assam, the Chief Secretary, Government of Assam, the Secretary to the Governor of Assam, the Principal Secretary T, North Kachar Autonomous Council, the Principal Secretary and North Kachar Hills Autonomous Council, and Devolal Golosa, Chief Executive Member. They have, in that petition, they have alleged that the case of the petitioner, that is the petitioner here, Somerjit Haflongbar, is that the North Kachar Hills Autonomous Council was created under the 6th schedule to the Constitution of India, and it is the oldest council under 6th schedule, and as per para 2(6)(a) of the 6th schedule, elected members of district council shall hold its term for a period of 5 years unless the district council is dissolved. The petitioner further states that the last election of North Kachar Autonomous Council was held in the month of January 2019, and the respondent number 6, Devolal Golosa, was elected a member of the council and thereafter was appointed as the chief executive member. So this was a petition, and they have stated in their petition that many charge sheet has been filed against the respondent number 6. So he is not liable to be the chief executive member of the Autonomous Council. So here I want to mention here that in this case many arguments were laid down, giving many reference cases by the advocate of the respondent number 6, Devolal Golosa, and which the Honorable Court, Honorable High Court have given their views in this regard from the different
cases, and as per, if we go through the rules of the strict schedule of the Autonomous Council, it is also found that a person shall be disqualified for being elected as and for being a member of the district council of an autonomous district if, whether or after the commencement of this rule, that is Rule 17 subsection 1 F, in this rule, he has been convicted by a court of India of any offence and sentenced to transportation or to imprisonment for not less than 2 years, unless a period of 5 years or such less period as the governor may allow in any particular case has lapsed since the release. So here in this case, the Autonomous Council have also their rules regarding the who can be the member and who cannot be the member, and their allegation was that only charge sheet has been submitted and he should not be the chief executive member. So the Honorable High Court, after going all through the reference cases and all, has given its verdict on, given the judgment on 1/2/2021. This and the judgment was that they have gone through the proceeding paragraphs which was laid down under the reference cases, that the law now where provides that such a person should be held to be disqualified as chief executive member. The law in fact is quite different, which has been pointed by the Learned Counsel for the respondent number 6, which is in the Rule 17(1) subsection F, where the only disqualification is where such a person has been convicted. It is not the petitioner case that the respondent number 6 has been convicted. In view of the above discussion, the PIL, public interest litigation, fails and it is dismissed. So there was no allegation against the respondent number 6, that is the chief executive member, Sri Devolal Golosa. So the case was dismissed off by the Honorable High Court. पार्टी का आंदोलन कुछ ऐसा चल रहा है, वो सीएम को गिरा के दूसरा कोई बैठे, ऐसे कुछ है नहीं? मेरा हिसाब से ये हिडन एजेंडा ही है, वो हिडन एजेंडा के थ्रू ये सब करवा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जब से देवलाल गौरोसा जी का लीडरशिप में काउंसिल फॉर्म हुआ है, तभी से यहाँ का जो डेवलपमेंट, यहाँ का जो कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होके आया है कि हम लोग पहले सोच भी नहीं सकता था। फॉर एग्जांपल 10 महीना का जो सैलरी पेंडिंग थे, वो इलेक्शन एमएससी इलेक्शन होने से पहले क्लियर कर दिया गया था, जबकि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जब था उसी समय में 1 महीना का भी उन लोग सैलरी का जो पेंडिंग यहाँ रहता था वैसे वो क्लियर करने को वहाँ से कुछ मदद नहीं आता था। जो भी हो, यहाँ का जो काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इतना जो तालमेल मिल करके, और यहाँ का जो गौरोसा जी का लीडरशिप में इतना जो अच्छा काम चल रहा है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट और कोई भी हो सब चल रहा है, उसी को इन लोग का जो है वो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो जा कर के वो ठीक से ये जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जो डेवलपमेंट जो काम कर रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स जो आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जो आगे बढ़ रहा है, उसको करने में कुछ उसका रुकावट हो, ताकि आगे जा कर के इलेक्शन में ये गवर्नमेंट में फलाना का गवर्नमेंट में कुछ काम कर नहीं पाया, ये बोलने का मौका मिले। शायद वही एक हाइडन एजेंडा है। जैसे हम लोग का भारतीय जनता पार्टी दिमा हसाव के लीगल एडवाइज़र मैडम ने बोला है, 1 तारीख फरवरी को एक लैंडमार्क जजमेंट हम लोग बोलेंगे विद ए केस विद रिगार्डिंग टू स्पेशली PIL केस नंबर 51/2020। एक लैंडमार्क बोलता है, नॉट बिकॉज जो केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ असम काउंसिल एंड आर CM साहब उसका डिसमिस हुआ, बट लैंडमार्क कहते हैं क्योंकि ये केस के ऊपर जो आप लोग सब मालूम है
एक क्लैरिटी लेके आया है, एक सफाई लेके आया है दिमा हसाओ का सबके लिए, स्पेशली हम लोग का आम जनता के लिए। तो उसमें से जो बीजेपी पार्टी, जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन हो, या हम लोग का जो बीजेपी सरकार जो काउंसिल जिसके अध्यक्ष जो सीएम साहब देवलाल गुरुदास सर जी है, वो डायरेक्टली यूज था, वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक अटेम्प्ट था टू क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर वॉट एवर वेस्टेड या पर्सनल या वॉट एवर इंटरेस्ट जो भी हो, जो पिटिशनर्स ने लर्नड पिटिशन में दिया था। तो एक क्लैरिटी आया, बहुत खुश है एक नंबर। सेकेंडली, एक साफ जो हाई कोर्ट सिर्फ जज का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड उसके साथ बेंच में बैठा है साथ ही जस्टिस ऑनरेबल आईजी डुअल बेंच ने एक जजमेंट दिया है। उसमें से रेफरेंस क्लियरली लिया है ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस इन 2014, वो स्पेसिफिक रिगार्डिंग जो हम लोग का अपोजिशन हो या पब्लिक कंफ्यूज था, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम डिबार होगा नहीं। फिर भी उसके साथ साथ में 2019 में भी एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वहाँ में जिसके एमपीज और एमएलएस खिलाफ, जिसे जो हम लोग का 6 शेड्यूल काउंसिल का जो एमएसीज ऑल्सो आर हेल्ड लाइबल और सिमिलरली है, उसमें से रेफरेंस ये सब लेके एक क्लियरली स्पष्ट किया, क्लियरली प्रूफ किया कि देयर इज़ नो ग्राउंड्स टू डिबार और द सीएम ऑफ द काउंसिल, there's no law for the resignation of this such. तो आपने देखा कि बीजेपी के लीडर्स ने क्या कहा। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि देवलाल गलोसा जी के ऊपर ऐसे काफी सारे केस है जिनका रिजल्ट अभी भी आना बाकी है। ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा कि उन सब केस का रिजल्ट क्या होता है। तो इसी तरह डिमा हसाओ और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को पाने के लिए देखते रहिए एनडीएच। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।